إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل احترام معزز سامعین و سامعات، تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہیں، اسی کے لیے لائق و زیبا ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ وہی رب جبرائیل ہے، وہی رب میکائیل ہے، وہی خالق السماوات والارض ہے۔ بعدہ لاکھوں درود و سلام ہو جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اس کے پیغامات کو اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالنے کا پیغام عملی نمونہ پیش کرے۔ معزز سامعین و سامعات، ابھی جس مہینے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، جن دنوں سے میرے اور آپ کا گزر ہو رہا ہے، یہ ماہ محرم کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی تاریخ کے مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں شروع کیا، اپنی خلافت میں شروع کیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی بننے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں جو بہت سارے کارنامے انجام دیے، ان کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے، انہوں نے اسلامی تاریخ، ہجری تاریخ کی بنیاد اپنی دور خلافت میں رکھی۔ وہ یہ تھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس صحابہ اکرام میں سے بہت سارے گئے اور انہیں جا کر کے درخواست کیا۔ ہر قوم کے اندر اس کی پہچان کے طور پر ایک تاریخ، ایک سال کا آغاز ہوتا ہے، عیسوی تاریخ عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو ایسے ہی ہم کیوں نہ یہ کام کریں کہ اسلامی مہینوں کا آغاز، اسلامی سال جو ہوتا ہے وہ ہم کسی اسلام کی پہچان کے بنیاد پر کیوں نہ کریں۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسے بہتر بھی سمجھا، مناسب بھی سمجھا، تو اس کے مشورے کے لیے صحابہ اکرام میں سے کبار صحابہ جو تھے، معزز ذی وقار ذی علم جو صحابہ تھے، انہیں مشورے کے لیے جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ اسلامی سال کا آغاز کس کی بنیاد پر کیا جائے۔ تو صحابہ میں سے چند نے مشورہ دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس سال سے لے کر کے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔
عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسے مناسب نہیں سمجھا، اس رائے کو ٹال دیا اور کہا کہ کوئی اور مشورہ۔ بعض صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے وہ تاریخ کو رکھ کر کے وہاں سے اسلامی مہینے کا، اسلامی سال کا آغاز کیا جائے، انہوں نے اسے بھی رد کر دیا۔ اس کے بعد یہ بات آئی، یہ رائے آئی کہ اسلامی سال کا آغاز ہجری سال کیا جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، یہ تاریخ اسلام میں ایک بڑا معزز کام ہے، بڑا افضل کام ہے، بڑا ہی آزمائشوں والا ہے، بڑے ہی قربانیوں والا مہینہ ہے۔ ایک ہجرت کا جو کام ہے وہ ہجرت، تو اسی لیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسی کو مناسب سمجھا اور اپنے دور خلافت میں وہاں سے شروع کیا۔ لگ بھگ یہ واقعہ 1440 پر 7 سال پہلے، 1440 پر 7 سال پہلے یہ واقعہ ہجری کا پیش آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے۔ میرے بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے لیے مکمل نمونہ اور اسوہ، باپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسوہ، ایک نمونہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اولاد تھی، اللہ کے نبی کے بھی بیٹے تھے اور اللہ کے نبی کے بیٹیاں بھی تھے۔ بیٹے اور بیٹیوں کی تربیت کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے ایک نمونہ ہیں کہ بیٹوں کی تربیت کیسے، بچوں کی تربیت کیسے کریں گے۔ اللہ کے نبی نے بچوں کی تربیت کر کے ان سے پیار اور محبت کا معاملہ کر کے امت کو یہ بتایا، یہ ثابت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ بھی اپنی امت کے لیے ایک نمونہ اور ایک اسوہ ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، عالم، ایک علم دینے والا، ایک مدرس کیسا ہوگا، بحیثیت سے مدرس بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے لیے تعلیم کا نظم کیا، تعلیم دیا۔ ایک مدرس کیسے ہونا چاہیے، بحیثیت مدرس بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے ایک نمونہ، ایک اسوہ ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک طالب علم بھی میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے کہ جبرائیل امین جب اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، جبرائیل امین انہیں قرآنی آیات کو سناتے تھے، سکھاتے تھے، تو اس وقت میں اللہ کے نبی کیسے ادب کے ساتھ میں، کیسے احترام کے ساتھ میں علم کو حاصل کیا کرتے تھے۔ تو بحیثیت طالب علم بھی اللہ کے نبی میرے اور آپ کے لیے ایک نمونہ، ایک اسوہ ہے۔ اور بحیثیت شوہر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے ایک نمونہ ہے۔ ایسے ہی زندگی کا ہر کام، زندگی کے ہر موڑ پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ ہر کام میں، ہر جگہ پر، ہر قدم پہ، قدم قدم پر، چاہے وہ زندگی کا کون سا بھی کونا کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی میرے اور آپ کے لیے بحیثیت اسوہ ہیں، بحیثیت آئیڈیل ہیں، بحیثیت نمونہ ہیں۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے تمام کاموں میں نمونہ اور آئیڈیل بنا کر کے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے نبی میرے اور آپ کے لیے نمونہ اور آئیڈیل صرف عبادات میں نہیں ہے، صرف نماز میں نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر کام میں اللہ کے نبی میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہیں۔ جہاں عبادات میں، نماز کے معاملے میں نمونہ ہے، ویسے ہی روزے کے معاملے میں نمونہ ہے، ویسے ہی حج کے معاملے میں بھی، ویسے ہی صدقات اور خیرات کے معاملے میں بھی، ویسے ہی بیوی کے ساتھ سلوک کے معاملے میں، بچوں کے حق کو ادا کرنے میں، ماں باپ کے حق کو ادا کرنے میں، طالب علم کی حیثیت سے، معلم کی حیثیت سے، یہ تمام چیزوں میں اللہ کے نبی میرے اور آپ کے لیے نمونہ اور اسوہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا کام ہجرت جو ہے، یہ ہجرت بھی میرے اور آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کیا، یہ ہجرت ایسے ہی نہیں کر لیا ہے، اٹھے بیٹھے ایسے ہی فیصلہ نہیں کر لیا ہے، ایسے ہی گھر سے نہیں نکل کر کے پڑے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے ہجرت کے لیے بھی فیوچر کے لیے ایک پلاننگ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
प्लानिंग के तहत ये हिजरत का काम भी किया है। एक नमूना इसके लिए भी है, एक उसवा इसके लिए हमारे लिए भी है कि आदमी आगे के लिए जो काम करना चाहता है वो कामों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमारे लिए एक ये भी है कि मनसूबाबंदी के साथ में आदमी को काम करना चाहिए। बगैर प्लानिंग के कोई भी काम नहीं हो सकता है। अगर बगैर प्लानिंग के कोई भी काम करेंगे, बगैर मनसूबाबंदी के काम करेंगे तो उसके अंदर खैर नहीं है, उसके अंदर कामयाब नहीं हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत, इसके अंदर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनसूबाबंदी किया है, मनसूबाबंदी के साथ में हिजरत किया है। कौन से काम को कैसे करना चाहिए, कब निकलना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए और कैसे हिजरत करके जाना चाहिए, ये तमाम कामों के लिए अल्लाह के नबी ने एक मंसूबा किया है। ये मंसूबाबंदी के तहत अल्लाह के नबी ने हिजरत करके मेरे और आपके लिए उसवा बताया, ये नमूना बताया, ये तालीम दिया कि ऐ मुसलमानों, आप अपनी जिंदगी में कोई भी काम करना चाहते हो, ये घर बनाना चाहते हो, ये पढ़ाई करना चाहते हो, कोई भी काम अगर करना चाहते हैं तो उसके अंदर मंसूबे बंदी के तहत काम कीजिए। आगे के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए एक मंसूबा बनाए और मंसूबे के साथ में अगर काम करेंगे तो यकीनन कामयाब और कामरान हो जा सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का हर लम्हा, हिजरत का हर काम, हर दिन, हर रात और हर शाम मेरे और आपके लिए नमूना है। अल्लाह के नबी ने मंसूबे के साथ में काम किया है। अब हिजरत के वाक़े को मुख्तसर तौर पर मैं आपके सामने बताते हुए आगे बढ़ूंगा कि अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, मक्का से लोग हिजरत करके मदीना जब जाने लगे, अल्लाह के नबी ने सहाबा को हुक्म दे दिया तो सहाबा इकराम एक बाद दीगर मक्का से हिजरत करके मदीना जाने लगे। तो इस दौरान में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु भी मक्का से हिजरत करके मदीना जाने का इरादा कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया तो अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ अबू बकर, आप अपने हिजरत के दिन को, आप अपने हिजरत के अय्याम को, आप अपने हिजरत के अमल को थोड़ा मुअक्कर कर लीजिए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान करके उन्होंने मुअक्कर को कर लिया। ये इस बात का एक इशारा था कि हो सकता है आपके साथ में मुझे भी हिजरत के लिए हुक्म मिल जाए। अब उसके तहत हम मंसूबाबंदी करेंगे। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और थोड़ा आगे बढ़िए। मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अरब के लोगों में ज़ोहर का वक्त जो होता है, धूप का वक्त जो होता है, वो वक्त में कोई भी अरब अक्सर बाहर नहीं निकला करते हैं, इल्ला ये कि कोई मजबूरी हो, इल्ला ये कि कोई ज़रूरी काम हो, तो इसी वक्त में ज़ोहर के वक्त में बाहर लोग निकला करते हैं। वरना अरब के लोग अक्सर ज़ोहर के वक्त में बाहर, धूप के वक्त में नहीं निकला करते हैं। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मंसूबाबंदी के तहत, एक प्लानिंग के तहत, ऐसे वक्त में जहां अरब के लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी अपने घर से निकल करके धूप के वक्त में अबू बकर के घर को पहुंचे। ये खुद एक मंसूबा था कि लोगों की निगाहों से बचा जाए, लोगों से बच करके चले, लोगों से छुप करके ये काम करे कि मंसूबाबंदी जो हिजरत के लिए किया, ये प्लानिंग लोगों से छुप करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। उसके बाद अबू बकर के घर गए और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु से मशवरा किया और मशवरे के दौरान में अल्लाह के नबी ने अबू बकर से यह भी कहा, ऐ अबू बकर, आप अपने रिश्तेदारों को हमसे अलग कर दीजिए, मैं आपसे अलग से तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। ये भी एक मंसूबाबंदी था। उस वक्त में अबू बकर ने कहा, अल्लाह के नबी, मेरे और आपके अलावा यहाँ तो कोई और मौजूद नहीं है सिवाय आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा के। अब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंसूबाबंदी के तहत किया। अब अल्लाह के नबी ने अबू बकर से जैसा ही कह दिया तो उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु सफ़र के लिए 2 ऊँटनियों को तैयार किया और वो 2 ऊँटनियों को अच्छी ग़िज़ा दे करके उन्हें मख़बी बनाया, ताकतवर बनाया उन्हें। ये भी हिजरत के प्लानिंग में से एक प्लानिंग था। उसके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने 2 ऊँटों को तैयार किया, ये प्लानिंग हुआ। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकल करके जिस सिमत जाना चाहते थे वो सिमत छोड़ करके डायरेक्ट मदीने की तरफ निकलने के बजाय मुखालिफ सिमत में गारे सौर की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने का ये इरादा किया और वहाँ 3 दिन रुकने का प्लानिंग भी अल्लाह के नबी ने किया। और वो 3 दिन के दौरान में खाना पीना पहुँचाने के लिए अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हा जो
थी उनके लिए तैयार कराया और उनको खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी दिया। जब तक ये गारे सौर के अंदर मौजूद थे तब तक ये अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खुफिया तौर पर खाना वहाँ पर पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्होंने ले लिया था। इसके अलावा मक्के के अंदर जो खुफिया रास्तों को जानने वाला था, अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को कहला करके भेजा कि वो उसके पास जाए, उसके पास जा करके उसे गुफ्तगू किया जाए, उसके साथ बातचीत करे। ये पूरे प्लानिंग को उसे बताया गया और उसे मशवरा तलब किया गया कि आप हमको एक ऐसे रास्ते से मक्का से निकाल करके मदीना लेकर के जाएंगे जो रास्ता आम रास्ता नहीं था बल्कि खुफिया रास्ता था। वो रास्ते से लोग ज़्यादा नहीं जाते थे, साहिली इलाके से निकल करके जाने का था। तो बहरहाल अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्का के रास्तों को जानने वाला माहिर था, उसे किराए पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया। वो मक्का के रास्तों को, खुफिया रास्तों को, मदीने की तरफ जाने के तमाम खुफिया रास्तों को भी जानता था और ये अमानतदार आदमी भी था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको लिया। अब उसके बाद प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक जो गारे सौर के अंदर मौजूद रहेंगे, उस दौरान में मक्का के हालात, मक्का के अखबार को जान करके पहुंचाने के लिए भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंसूबे के तहत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे जो अब्दुल्लाह थे उनको उन्होंने मुकर्रर किया। ये दिन भर मक्का के अंदर रहा करते थे, सारे मक्के के गलियों में घूमा फिरा करते थे। यहाँ के सारे इत्तिलाएं पूरा मक्का सो जाने के बाद, रात का इब्तिदाई हिस्सा ख़त्म होने के बाद अल्लाह के नबी को ये जाते और मक्का के हालात के बारे में आगाह करते और ये रात वहाँ पर गुजारते। फिर जैसा ही सुबह होता तो सुबह का पहला पहर जो होता था यानी रात का आखिरी हिस्सा, वहाँ से निकल करके फिर भी ये मक्के को आ जाते। तो मक्के में ऐसा ज़िंदगी गुजारते गोया कि मक्का में देखने वाला ये समझता कि ये मक्का के अंदर ही ज़िंदगी इन्होंने गुजारा था। ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मंसूबे के तहत ही किया था। अब उसके बाद अरब के लोग जाहिल लोग थे, अनपढ़ लोग थे, लेकिन उनके अंदर बाज़ उलूम इतनी ज़्यादा गहराई के साथ में थे। उन उलूम में, उस इल्म में से एक इल्म ये भी था कि वो लोग चलते हुए रास्ते में इंसान के पैर के कदम के निशानात को देख करके भी ये पहचान ले सकते थे कि फला आदमी ही ये रास्ते से जा चुका है। इतनी ज़्यादा गहराई के साथ में ये नक्शे को पहचान करके लोगों को जानने का इल्म रखा करते थे। तो इसको मिटाने के लिए, ये निशानी को मिटाने के लिए जो रात में अबू बकर के बेटे ये जो खबर देने के लिए गए थे, ये जाने आने के कदम को देख करके कहीं लोग पहचान ना ले, इसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंसूबा बनाया कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के जो गुलाम थे, ये गुलाम ये बकरियां चराया करते थे, ये चरवाह थे। तो ये रात के आखिरी हिस्से में उमर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे गारे सौर से आ जाने के बाद ये बकरियों को हाँक करके लेकर के जाते ताकि उनके पैरों के निशान मिट जाए। फिर रात में वो पहुंचने के बाद आखिरी हिस्से में यानी इब्तिदाई हिस्से में बकरियों को चरा करके लेकर के आते थे। ये तमाम के तमाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के लिए मंसूबाबंदी थी। ये तमाम काम मंसूबे के तहत, प्लानिंग के तहत कर करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये पैगाम दिया कि ऐ मेरे उम्मत के लोगों, अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं, तो आप अपनी जिंदगी का हर काम एक मंसूबे के तहत में कीजिए, एक प्लानिंग के तहत में कीजिए, एक अज़्म के तहत में कीजिए। उसके लिए आगे रास्ते में क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, वो नुकसानात को बर्दाश्त करने की ताकत भी पैदा करे, खर्चा भी पैदा करे, पैसे भी जमा किया जाए, सवारी का भी इंतजाम किया जाए। ये तमाम चीज़ें एक प्लानिंग के तहत अल्लाह के नबी ने कर करके अपनी उम्मत को ये पैगाम दिया कि आप भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो हर काम को उठे बैठे नहीं करने का है, बल्कि हर काम के लिए प्लानिंग के तहत काम किया जाए, मंसूबाबंदी के साथ में काम किया जाए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर करके दिखाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर तकदीर पर ये सोच करके कि अल्लाह ने जो तकदीर में रखा है वो होगा वरना नहीं होगा, ये सोच करके तकदीर का बहाना बना करके नहीं बैठे हैं। तो ये हमारे लिए नमूना है कि हम भी तकदीर का बहाना बना करके घर में ना बैठे रहे, बल्कि हर काम के लिए कोशिश किया जाए, मेहनत किया जाए, जद्दोजहद किया जाए, फिर अल्लाह के ऊपर भरोसा किया जाए, फिर तकदीर के ऊपर भरोसा किया जाए। तकदीर का बहाना बना करके घर में बैठना ये सुस्ती की निशानी है, ये
जाहिली की अलामत होती है, ये नाकामी की अलामत होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, वो रब्बुल आलमीन, वो खालिक कायनात, वो मालिक दो जहां, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात के मुख्तसर से हिस्से में मक्का से बैतुल मक़दिस से लेकर के गया, फिर बैतुल मुक़द्दस से अल्लाह के नबी को आसमानों पर लेकर के गया, आसमानों की सैर कराया। मेराज का वाक़या, इतना लंबा सफ़र वो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक रात के एक हिस्से में इस काम को कर दिया। इतनी ताकत रखने वाला रब्बुल आलमीन अगर चाहता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लम्हे के लिए, सेकंडों के अंदर मक्का से मदीना पहुंचा सकता था। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हिजरत का यह वाक़या, ये मनसूबाबंदी, ये तमाम तकलीफ़ें, ये तमाम प्लानिंग मेरे और आपके लिए एक नमूना, एक उसवा है। ये सबक दे रहे हैं कि हम दुनिया के तमाम कामों के अंदर मनसूबाबंदी के साथ में काम किया जाए। हिजरत के इस वाक़ये से एक सबक हमको ये भी मिलता है। अब मनसूबाबंदी एक तरफ तो दुनिया की है और एक तरफ आखिरत की है। दुनिया के कामों के अंदर भी मनसूबाबंदी करना इंसान के लिए ज़रूरी है, और ऐसे ही आखिरत के बारे में भी हम एक मनसूबाबंदी करना चाहिए। ये मुख्तसर सी दुनिया की ज़िंदगी मेरे और आपके लिए है। 60-70 साल की ज़िंदगी है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल की ज़िंदगी होगी, उससे पहले ही इंसान मर जाएगा। उसके बाद हमारी जो ज़िंदगी आएगी वो आबदी ज़िंदगी आएगी। वहाँ जो भी नेमत मिलेगी वो तमाम नेमतें आबदी नेमतें होंगी। ये दुनिया की उम्र भी फ़ानी है, ये दुनिया की ज़िंदगी भी फ़ानी है, ये दुनिया की दौलत भी फ़ानी है, ये दुनिया की इज़्ज़त भी फ़ानी है। हमेशा रहने वाली आबदी ज़िंदगी, आबदी नेमतें, आबदी उम्र, आबदी खुशहाली जो मिलेगी मेरे भाइयों वो जन्नत होगी। एक मुसलमान के लिए जन्नत उसका टारगेट होना चाहिए, अल्लाह की रजामंदी उसके लिए होना चाहिए। तो जैसे हम दुनिया के कामों के अंदर मंसूबे के तहत काम करते हैं, एक प्लानिंग के तहत हम काम करते हैं, घर बनाने के लिए मंसूबाबंदी होती है, बेटे और बेटे के शादियों के लिए मंसूबाबंदी होती है, तालीम के लिए मंसूबाबंदी होती है। एक तालिब इल्म जो पढ़ाई करता है उसे भी ये मंसूबे के तहत काम करना चाहिए, और वो काम करता भी है कि मुझे ऐसे पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसे दर्जात से हासिल करना है, मुझे ऐसे दर्जात में कामयाबी हासिल करना, ऐसे ऐसे में पढ़ाई करना, ये मेरा मकसद है, ये मेरा एम है। तो एम को रख करके ज़िंदगी करे। इन एम में, इन टारगेटों में मेरे भाइयों, मेरे और आपके लिए सबसे बड़ा टारगेट, सबसे बड़ा एम, सबसे बड़ा मंसूबा जो होता है वो आखिरत का मंसूबा होना चाहिए। हम दुनिया में ऐसे आमाल को करें जिसकी वजह से हम मरने के बाद अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, इसका बदला हमें आखिरत में मिले। हम नमाजें ऐसे अदा करें, नमाजें ऐसे औकात में अदा करें, इस मकसद से अदा करें कि अल्लाह मेरे और आपसे राज़ी हो जाए, हमारी ये नमाजों का बदला अल्लाह के यहाँ मिल जाए। अल्लाह की रज़ाई कैसे हासिल हो जाएगी, अल्लाह की रज़ामंदी कैसे मिलेगी, अल्लाह जन्नत में कैसे दाखिल करेगा, जहन्नम में दाखिल होने से बचने के लिए क्या काम करना चाहिए, क्या काम से अल्लाह राज़ी होता है और किन कामों से अल्लाह नाराज़ होता है, ये सोच समझ करके मुझे और आपको ज़िंदगी में अमल करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मनसूबाबंदी के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बता दिया है, आखिरत का मंसूबा करके तुम आगे बढ़ो ज़िंदगी में। आखिरत के मंसूबे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई चीज़ें बताए हैं, कई बातें बताए हैं कि आखिरत में आपके लिए घर है, आखिरत में आपके लिए जन्नत है, आखिरत में आपके लिए जन्नत के बागात होंगे, आखिरत में अल्लाह की रज़ामंदी नसीब होगी। ये तमाम काम करने के लिए आप बंदे को दुनिया में आखिरत का मंसूबाबंदी से काम करना चाहिए। इसी मनसूबाबंदी के तहत सहाबा इकराम अल्लाह के नबी के पास आते थे और बार बार अल्लाह के नबी से सवाल करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें बताइए, मा हिय अफ़ज़लुल आमाल, ये कौन सा अमल है जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए, वो कौन सा अमल है जिससे अल्लाह खुश हो जाता है। ये सहाबा इकराम अल्लाह के नबी से बार बार पूछते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे, ये काम करो इससे अल्लाह राज़ी होगा, इसके बदले में जन्नत देगा, ये काम को छोड़ दो इससे अल्लाह राज़ी होगा, इसके बदले में अल्लाह तुम्हें जहन्नम से नजात दिलाएगा। ये मनसूबाबंदी के तहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत के बारे में भी सहाबा इकराम से अमल करने की तरफ तवज्जो दिलाया करते थे। याद करो उस हदीस को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस निकल करके आए और सहाबा इकराम को जन्नत के बारे में बताया, जहन्नम के बारे में बताया, वो अमाल भी बताए जो जन्नत में दाखिल कराने वाले हैं और वो अमाल भी बताए जो जहन्नम में दाखिल कराने वाले हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मैंने जन्नत के अंदर एक महल को देखा, वो महल की तारीफ़ किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उसकी खिड़कियाँ ऐसे हैं, उसके दरवाजे ऐसे हैं, वो महल ऐसा है,
इतना बड़ा होगा, ऐसा होगा, सब कुछ बताया। फिर सहाबा इकराम से पूछा, अगर तुम में से कोई भी आदमी ये चाहता है कि तुम्हारे लिए भी जन्नत में एक महल अल्लाह बना करके रखे, अल्लाह जन्नत में तुम्हें एक महल दे, तो जन्नत में महल की ख्वाहिश रखने वालों के लिए कहा कि दिन और रात में फर्ज नमाजों के अलावा 12 रकात सुन्नत नमाजें पढ़ ली। एक प्लानिंग है, एक मनसूबाबंदी है कि जो बंदा ये चाहता है कि जन्नत में उसके लिए घर मिले, जन्नत में उसके लिए महल बने, अल्लाह के नबी ने बताया कि पूरी जिंदगी मुस्तकिल तौर पर फर्ज नमाजों के अलावा 12 रकात सुन्नत नमाजें तो पढ़ ले, तो ये मनसूबाबंदी है, ये काम तेरा है, ये काम तो करेगा तो इसके तहत अल्लाह तबारक व तआला वहां पर जन्नत में घर देगा। आज पढ़े कल छोड़ दिए नहीं, सारी जिंदगी में फर्ज नमाजों के अलावा जो बंदा ये 12 रकात पढ़ेगा उसके लिए जन्नत में एक महल अल्लाह बना करके देगा। इसके अलावा कितने ऐसे खुशखबरियां हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। ये तमाम अहादीस, ये तमाम आयतें मुझे और आपको इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि हम दुनियावी कामों में कामयाबी और कामरानी हासिल करने के लिए जैसा मनसूबाबंदी के तहत काम करते हैं, घर बनाने में हम मनसूबाबंदी, शादी में मनसूबाबंदी, पढ़ाई में मनसूबाबंदी, बच्चों के फ्यूचर के बारे में मनसूबाबंदी, ये तमाम चीज़ों के लिए मनसूबे के तहत खर्चे में बचत करते हैं। सारे काम जो मनसूबे के तहत करते हैं मेरे भाइयों, ऐसा ही हमारा एक मनसूबा अपनी ज़िंदगी में होना आखिरत के बारे में कि हम वो तमाम काम करेंगे जो अल्लाह को पसंद है, वो तमाम काम करेंगे जिसे अल्लाह के नबी ने करने का हुक्म दिया, वो तमाम काम से बच जाएंगे जिसे अल्लाह के नबी ने मना किया है। ये मनसूबाबंदी के तहत आगे बढ़ करके जाएंगे मेरे भाइयों, हमारी दुनिया भी सुधर जाएगी, आखिरत भी सुधर जाएगी, आखिरत भी हमारी बन जाएगी, दुनिया भी हमारी बन जाएगी। बहरहाल खुलासा कलाम ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जहाँ मेरे और आपके लिए दूसरे कामों में नमूना और उसवा है, वहीं अपनी ज़िंदगी के मकसद में आगे बढ़ने के लिए मनसूबाबंदी के लिए भी अल्लाह के नबी एक उसवा और नमूना मेरे और आपके लिए हैं। तो हिजरत के तमाम वाक़यात से हिजरत के बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे असबाब हैं, बहुत सारे नतीजे हमें उसको मिलते हैं। उनमें से एक ये भी है कि मनसूबाबंदी के तहत हर एक काम को हम किया जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए हमारे हर काम को मनसूबाबंदी के तहत करने और अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर भरोसा करते हुए गुजारने की अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अजमईन। बारकल्लाहु लना व लकुम व नफ़अना व इय्याकुम बिज़िक्रिल आयातिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुन व रब्बुन हलीम।